السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے دوستوں اور پیارے ساتھیوں، آج ہم غزہ کے بارے میں ایک اور چھوٹی سی خبر کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ خبر ابھی ابھی آئی ہوئی ہے کہ غزہ کا جو حماس کا جو ہے، غزہ میں حماس جو تحریک ہے، اس کا جو یہ تھا سربراہ، نیا سربراہ سنور نام ہے، ان کو مار دیا گیا۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا کہ اس کو بھی ختم کر دیا گیا، ٹھیک اسی طرح جس طرح اسماعیل ہانیہ کو ختم کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی جنگ کی حالت میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہاں تک بات یہ صحیح ہے کہ الحرب علی غزہ، غزہ پر جنگ، ٹھیک ہے۔ تو الجیش الاسرائیلی یعلن قتل یحییٰ السنور، اسرائیلی فوج جو ہے یحییٰ سنور کے قتل کا اعلان کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں دیکھیں، یہیں پر حملہ ہوا ہے، سنتا ہوں۔ اب دیکھیں، مع دخول علی غزہ یومها 377 اعلنت اذاعة الجيش الاسرائیلی انه تم قتل رئیس حماس یحییٰ السنور، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ترجمہ کہتے مع مانے ساتھ، دخول الحرب مانے جنگ کے داخل ہونے کے ساتھ، علی غزہ مانے غزہ پر، کہتے غزہ پر جنگ کے داخل ہونے کے ساتھ اپنے 377 دن میں، ٹھیک ہے، اپنے 377 دن میں داخل ہونے کے ساتھ اعلانت اذاعۃ الجیش الاسرائیلی، اسرائیلی آرمی یا اسرائیلی فوج کے براڈ کاسٹ نے اعلان کیا، انہ تم قتل رئیس حماس یحییٰ السنور، حماس کے رہنما، ٹھیک ہے، یحییٰ السنور کا قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، حماس کے رہنما یحییٰ السنور کا قتل ہو گیا۔ یہ کون اعلان کیا؟ اسرائیلی آرمی کا جو براڈ کاسٹ ہے یا ٹی وی ہے۔ وَأَضَافَتِ الْإِذَاعَةُ، اذاعت کہتے ہیں وہی جو کیا کہتے ہیں، نشریات، ٹھیک ہے، براڈ کاسٹ۔ وَأَضَافَتِ الْإِذَاعَةُ، اور جو کیا کہتے ہیں براڈ کاسٹ یا پھر ٹی وی نے کہا، ان الاشتباک مع السنور وقع بتل السلطان برفح، کہ اذاعت نے کہا کہ ان الاشتباک، کہ وہ سنور کے ساتھ جو جھڑپ ہے وہ ہوا ہے بتل السلطان، سلطان کوئی جگہ کا نام ہے، بتل سلطان کہ جو ٹیلا ہے کوئی جگہ کا نام، وہاں ہوا رفح کے اندر۔ وکان یرتدی جعبۃ عسکریۃ، اور وہ فوجی لباس جو ہے پہنے ہوئے تھے۔ ومعہ قیادی میدانی آخر، اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا کیا کہتے ہیں گراؤنڈ لیڈر تھا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ زمین پہ کوئی دوسرا لیڈر بھی تھا حماس کا۔ ولم تعلق حرکت المقاومہ الاسلامیہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اسلامی ریزسٹنس موومنٹ، ٹھیک ہے، یہ حماس کا کیا مخفف شارٹ فارم ہے۔ اور حماس نے کوئی کمنٹ نہیں کیا حتی الآن، ابھی تک، علی اعلان مقتل رئیسہا یحییٰ السنور، ان کے سربراہ یحییٰ السنور کے قتل کے بارے میں، ٹھیک ہے، ابھی تک کوئی کمنٹ نہیں کی رہا۔ ممکن ہے کہ قتل ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، ورنہ اسرائیل کیوں کہے گا، ٹھیک ہے۔ پتہ چلا کہ وہ اعلان کر دیا اور پتہ چلا کیا زندہ ہے، تو دنیا میں کیا ہے ایک طرح سے جگ ہسائی ہوگی، تو اس کے بعد سے لگتا نہیں کہ اسرائیل آرمی جو ہے جھوٹ کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ واستمر الاحتلال الاسرائیلی فی عملیۃ الابادہ فی جبالیہ بشمال القطاع، ٹھیک ہے۔ واستمر الاحتلال الاسرائیلی، اور اسرائیلی فوج یا قابض فوج کا جو ہے وہ برابر جاری ہے، فی عملیۃ الابادۃ، قتل کے کاموں میں، بربادی کے کاموں میں، فی جبالیہ کے اندر، ٹھیک ہے، جبالیہ ایک جگہ ہے، بشمال القطاع،
गज़ा पट्टी के शुमाल में, जो गज़ा पट्टी के शुमाल में जबालिया एक जगह है जहाँ पर सारे गज़ा के लोग कैंपों में ठहरे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ बराबर क्या कर रहे हैं, ये बमबारी कर रहे हैं हर बर्बाद कर रहे हैं। हैसो नुसिफल अदीदो मिनल मबानी, जहाँ ठीक है कई बिल्डिंग्स को क्या ब्लास्ट कर दिया गया, मतलब ये ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, कसाफा कहते हैं बमबारी से उड़ाना, और नासाफा कहते हैं जड़ से उखाड़ना और ब्लास्ट करना। ठीक है, तो क्या कर दिया, कई बिल्डिंग्स को ताहोबाला कर दिया गया, उसको मलियामेट कर दिया गया। फ़ी हीन क़ाल दिफ़ाउल मदनी बिक़िता गज़ा इन्नहु ला क़ुदरत लहु अला इंतिशाल अशरात शुहदा तहत अल अनक़ाज़ व अला तुरुक़ात। ठीक है, कहते फ़ी हीन ऐसे वक्त में क़ाल दिफ़ाउल मदनी, जो सिविल डिफेंस है, जो सिविल डिफेंस है गज़ा पट्टी के, तो गज़ा पट्टी के जो सिविल डिफेंस है उन्होंने कहा कि इन्नहु ला क़ुदरत लहु, उनको वो नहीं निकाल पा रहे अला इंतिशाल अशरात शुहदा तहत अल अनक़ाज़, अनक़ाज़ नक़्ज़ुन जमा अनक़ाज़, इसका मतलब होता है मलबा, जो बिल्डिंग का ढेर होता है। कहते हैं मलबों के तले दसियों शहीदों को निकालने पर वो कादिर नहीं है, यानी वो नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, मलबा के तले दबे दसियों शहीदों को नहीं निकाल पा रहे हैं, वाला तुरुक़ात और रास्तों पर, यानी रास्तों पर पड़े शहीदों को वो नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, क्यों, इसराइली मुसलसल क्या कर रहे हैं, हमला कर रहा है। हमला रुकेगा तब न जाके वो जो बिल्डिंग्स के मलबा में दबे हुए हैं या सड़क पे पड़े हुए उसको निकालेंगे। ठीक है, और फिर ज़फ़्फ़तिल ग़रबिया, और मगरिबी किनारे में, मगरिबी किनारा किसी को कहते हैं, फ़िलिस्तीन का दूसरा हिस्सा, एक हिस्सा गाज़ा पट्टी और दूसरा हिस्सा है मगरिबी किनारा, यही दो बचा हुआ है फ़िलिस्तीन का हिस्सा जो मुसलमानों के कब्ज़े में है, बाकी सब इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है। कहते हैं मगरिबी किनारे में वासल अल इख्तिलाल इक़्तिहामातिही अल-लैलिया हैसु उसीबा तिफ़्लुन बिर्रसास खिलाल इक़्तिहाम क़ुव्वतिल इह्तिलाल मदीनत सल्फ़ियत शुमाली ज़फ़्फ़ा। ठीक है, कहते वासल अल इह्तिलाल इक़्तिहामातिल लैलिया, कहते मकबूज़ा उन्होंने काबिज़ इसराइली फ़ौज ने क्या किया, रात में घुस गए। ठीक है, यानी मुसलसल जारी रखा रात में घुसने को, मतलब रात में घुस गए। हैसो, जहाँ उसी बात तिफ़्लुन बिर्रसास, एक बच्चे को गोली लगी, खिलाला इक़्तिहाम क़ुव्वतिल इह्तिलाल, काबिज़ फ़ौज, ठीक है, या इसराइली फ़ौज के दाखिल होने के दौरान, किसमें, शुमाली गज़ा के सल्फ़ियत शहर में। ठीक है, सल्फ़ियत शहर में। इक़्तिहामा कहते हैं घुसना, दाखिल होना, ज़बरदस्ती। कमा उसीबत क़नातुन फ़तातुन बिल इख्तिनाक़ व शाबुन बिरुज़ूज़िन खिलाल इक़्तिहाम मुख़ैमिल जलजून, जैसा कि एक बच्ची को क्या लगा, मतलब है कि घुटन हुई, मतलब है कि वो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उसको बोलते हैं इख्तिनाक़। जैसे कि एक बच्ची को मतलब क्या हुआ, सांस लेने में तकलीफ़ हुई, और एक नौजवान को क्या हुआ, सदमा लगा। कब लगा, खिलाल इक़्तिहाम मुख़ैमिल जलजून, जलजून के खीमे में घुसने के दौरान। ठीक है, क्योंकि फ़ौज जाते हैं तो एक तरह से मूद बन के जाते हैं। ठीक है, ये इसराइली फ़ौज खासतौर से आवाम के दरमियान जाते हैं तो मूद बन के बेरहमी के साथ, क्योंकि जिसको चाहते हैं धावा बोल देते हैं, मार देते हैं। तो मासूम बच्चे हैं, कभी देखे नहीं होंगे, तो इस तरह हो जाता है। वाला सईद लबनानी, लबनानी सतह पर, यानी लबनान के जो मंजरनामा है उसकी बात करें तो अगारत मुक़ातिलातुन इसराइलियतुन अलल अदीद मिनल बलदातिल हुदूदिया जुनूब लबनान। ठीक है, ख़ासतन जुया व मस्जिद लोज़रून वल ख़ियाम वल हूश वल बसातीन व कुफ्र हम्माम। करे के ये लबनानी सतह पर जो है
अगरत मुकातिलतुन इसराइलिया, इसराइली लड़ाकों ने हमला किया कई सरहदी शहरों पर जुनूबी लबनान, लबनान के जुनूब में, ख़ास तौर से जुया, ये मजदुलिन, खयाम, होश, बसातीन, कुफर, हम्माम, ये जगह। कमा अगारत अला मुहीत मदीनत बालाबक बिल बका शर्क़ी लबनान, जैसे कि हमला किया कहाँ पे, ये बालाबक शहर के मतलब पूरे एरिया में, ठीक है, बिल बका के अंदर, ठीक है, ये शर्क़ी लबनान, मशरिक़ लबनान के मशरिक़ में, ठीक है। वस्तहदफ़त मुहीता बल्दातिल क़स्र व होश अस्सैद अली व जरमाश बिलबका, और टारगेट बनाया, ठीक है, बल्दातुल क़स्र को और होश के जो होश अस्सैद अली, इसकी यहाँ पर टारगेट बनाया, और जरमाश बका के अंदर, बका एक जगह है, इलाका है, वही सब ये सब शहर है। फिल मुकाबिल, उसके मुकाबले में वासला हिज़्बुल्लाह क़स्फ़ मराबिता मिदफ़इया लिजैशिल इह्तिलाल फ़ी इद्दत मवाक़िअ बेशुमाली इसराइल, शुमाली इसराइल में इसराइल के शुमाल में, यानी नॉर्थ में, इसराइल के नॉर्थ में, शुमाल में कई ठिकाने पर, कई जगहों पर इसराइली फ़ौज के जो तोप खाने हैं, जहाँ तोप को मतलब खड़ा करके रखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे क्या किया, हिज़्बुल्लाह ने बम्बार्डमेंट किया या हमला किया, ठीक है, बमों से हमला किया। वह फिर इतारिन आखर, दूसरे दायरे में, ठीक है, नक़लत शबकतु ईबीसी नेटवर्क ने नकल किया, ठीक है, अन मसदरिन इसराइली सोर्स से, ठीक है, यानी इसराइली सोर्स की एक बात जो है नकल किया, अन्ना रईसल वज़रा बिन्यामिन नेतन्याहू वाफ़क़ अला मजमूअत अहदाफ़िन लिज़रबिहा दाखिला ईरान, कि रईसल वज़रा बिन्यामिन नेतन्याहू ने मुवाफ़क़त कर दी, मंजूरी दे दी टारगेट्स के ग्रुप को, लिज़रबिहा, कि वो स्ट्राइक करे ईरान के अंदर, ठीक है, यानी वो कह रहा कि जो टारगेट्स का ग्रुप है उसको एक मंजूरी दे दी कि जाओ तुम लोग जो है हमला करो, कहाँ, ईरान के अंदर। दूना तहदीद जदवलिन ज़मानीन लिल हुजूम, हमले के बग़ैर ज़माना टाइम टेबल की तहदीद की है, तआयीन की है। हद्दद युद, तहदीद का मतलब होता है तआयीन करना, मुतय्यन करना, ठीक है। जदवलन ज़मानियन माने टाइम नहीं बताया कब हमला करेगा, टाइम टेबल ये नहीं बताया, बस एक खबर नकल किया जिसमें ये बात बताई गई कि नेतन्याहू ने मंजूरी दे दी कि जाओ ईरान के अंदर हमला करो, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम नहीं लिखा गया था जो कब हमला करें, ठीक। तो चलिए आज इसी पर इक्तफा करते हैं।